Hello students, today we are going to take a new chapter from your English textbook, Footprints Without Feet. We are going to take chapter number 2, The Thief's Story. A young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? Let's read and find out. Who does I refer to in this story? What is he, a fairly successful hand, at? What does he get from Anil in return for his work? The story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? He replied, I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his house, to his room over the Jumna sweet shop, and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible, because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind, he'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems
He wrote for magazines, a cure way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work, I told myself. I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो कहानी यहाँ तक। यह कहानी एक चोर की है, और ये चोर केवल 15 साल का एक नवयुवक है, और वह एक नए शिकार के तलाश में है जिसे वो चुरा सके। तो गांव में एक जगह कुश्ती का प्रतियोगिता चल रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। तो ये लड़का भी वहाँ पर चला गया। ये 15 साल का जो लड़का है, जो चोर है, वह भी वहाँ चला गया और उसने अपना शिकार चुन लिया। उसके शिकार का नाम था अनिल। अनिल एक 25 साल का नौजवान था, दुबला पतला ऊंचा पूरा। और इस लड़के को लगा कि ये काफ़ी आसान शिकार है, इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। और ये सोचते हुए वो उसके पास चला गया, और अनिल के पास जाते ही वह अनिल से बातें करने लगा। उसने अनिल से कहा कि आप तो एक कुश्ती के पहलवान जैसे दिखते हो। ये इसने इसलिए कहा कि थोड़ा मस्का पॉलिश मारने से लोग आसानी से पट जाते हैं, आसानी से अपने चुंगल में, अपने जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अनिल भी कुछ कम थोड़ी था। अनिल ने पलट के उसको कहा, तुम भी एक पहलवान लगते हो। यानी अनिल जानता है कि वह उसका जो शरीर है वो पहलवानों जैसा नहीं है, और ये 15 साल का लड़का है, इसकी भी शरीर पहलवानों जैसे नहीं है। तो जानबूझकर अनिल पलटकर बोलता है कि तुम भी तो एक पहलवान के जैसे लगते हो। ऐसा जवाब सुनते ही ये जो नवयुवक था, 15 साल का जो चोर था, वो थोड़ा सा घबरा गया, यानी अपने जो लक्ष्य से थोड़ा सा वो विचलित हो गया। तो वापस से अपने नर्व्स को इकट्ठे करते हुए वो बोलता है कि ठीक है, मैं कभी कभी कुश्ती लड़ लेता हूँ। यानी वो इतने जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं था। मैं भी कभी कभी कुश्ती लड़ लेता हूँ, ऐसा कहकर वो उससे बातें करने लगा। फिर अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया, हरी सिंह। हरी सिंह उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम क्या है इस कहानी में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बताया गया है कि इस नवयुवक का नाम हरी सिंह नहीं था। इस 15 साल का बच्चा जो है, चोर जो है, उसका नाम हरी सिंह नहीं था। वह हर महीने अपना नाम बदला करता था। नाम बदलने का कारण क्या था? क्योंकि वो जिस पेशे में था वो पेशेवर चोर था, पेशे से वो चोर था, और पुलिस से बचने के लिए और अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए वो अपना नाम बार बार बदलते रहता था। तो उसने बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है, ऐसा झूठ से उसने कहा। फिर अनिल ने उन कुश्ती पहलवानों के बारे में ज़िक्र किया कि देखो किस प्रकार से उनके शरीर में कितना तेल लबालब लबा हुआ है, किस प्रकार से वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, दाव पकड़ रहे हैं,
और हरी सिंह के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए चुपचाप से वो अनिल के पीछे पीछे चलने लगा और वहाँ से अनिल चला गया और उसके पीछे पीछे हरी सिंह भी धीरे धीरे चलने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने फिर से अनिल का आकर्षण अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए उसने कहा, हेलो अगेन। अनिल ने जब उसको देखा, अनिल ने जब हरी सिंह को देखा, उसने कहा हेलो अगेन, तो फिर से आ गया। तो अब हरी सिंह के पास कहने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने एक झूठी मूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला ली और कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा, भाई तू तो काम कर लेगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो हरी सिंह ने कहा कुछ देर सोचने के बाद कि क्या मैंने गलत इंसान को चुन तो नहीं लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास पैसा ही ना हो। फिर उसने पूछा, हरी सिंह ने पूछा, ठीक है, अगर आप मुझे पेमेंट नहीं कर सकते हो, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो क्या? जिस पर अनिल ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पकाना आता है? और इसने फिर से एक और एक झूठ बोल दिया, हाँ मैं पकाना जानता हूँ। फिर अनिल ने बोला ठीक है चलो। फिर अनिल ने उसको अपने कमरे में ले गया। अनिल किराए के कमरे में रहता था। उसका कमरा जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एक मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था जुमना स्वीट शॉप, और वहाँ पर उसको ले गया और बोला कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। और फिर रात में जब हरी सिंह ने खाना पकाया तो शायद खाना बहुत ही बेस्वाद निस्वाद हुआ होगा, क्योंकि अनिल ने अपना खाना किसी कुत्ते को खिला दिया और उसे कहा, बेटा तू यहाँ से कट ले, यहाँ से निकल ले, यहाँ से चले जा। फिर ये लड़का करता क्या, उसने वापस से एक मुस्कुराहट दी। अनिल से रहा नहीं गया। अनिल उसको देखा और हंसने लगा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। और उसके सर के ऊपर, उसके सर को हल्के से सहलाते हुए कहा कि वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा, हरी सिंह को खाना पकाना सिखा देगा। खाना पकाने के अलावा अनिल हरी सिंह को लिखना भी सिखा रहा था। किस प्रकार से उसका नाम लिखा जा सकता है, किस प्रकार से हरी सिंह लिखते हैं। और उसने ये भी कहा कि बहुत जल्द अनिल उसे पूरा सेंटेंस, पूरा जो वाक्य है उसको लिखना और पढ़ना सिखा देगा, आंकड़े जोड़ना सिखा देगा। तो अनिल एक प्रकार से हरी सिंह के लिए वरदान साबित हुआ। तो हरी सिंह इसको लेकर बड़ा खुश था, बड़ा ग्रेटफुल था, शुक्रगुजार था। उसे लगा कि अगर एक बार उसे पढ़ना और लिखना आ गया पढ़े लिखे इंसानों की तरह, तो पता नहीं वो क्या कुछ कर सकता है। वो शातिर तो था ही, केवल वो पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वो पढ़ लिख ले तो और कितने लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है, और कितने लोगों को वो लूट सकता है अपने इस नए हुनर से। तो समय बीतता गया। हरी सिंह कहता है कि अनिल के साथ में काम करने में बड़ा आनंद आ रहा था उसे। वह सुबह सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाता था और फिर बाज़ार जाकर कुछ सामान खरीदता था बाज़ार से, और सामान खरीदते वक्त वो कुछ ना कुछ पैसे अपने जेब में कंची मारकर रख लेता था। 1 आध रुपया रोज़ कमा ही लेता होगा इस तरह से। शायद अनिल को इसका ज्ञान था। अनिल जानता था कि हरी सिंह इस प्रकार से पैसे कमा रहा है, लेकिन अनिल सिंह ने कुछ कहा नहीं, मानो उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। और अनिल की बात अगर की जाए तो अनिल जो है वो पैसे किस प्रकार कमाता था, फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कभी पैसे आते थे, कभी पैसे नहीं आते थे। कभी कभी तो ये नौबत आती थी कि उसको किसी से पैसे उधार मांगने पड़ते थे, और कभी कभी इतना पैसा आता था कि वो दूसरों को उधार दिया करता था। अनिल हर वक्त अपने आने वाले चेक के बारे में चिंतित रहता था कि कब उसका चेक आएगा, और जैसा ही वो चेक आता था वो पैसे बैंक से निकाल कर एक बढ़िया पार्टी वार्टी सेलिब्रेट करता, अच्छा खान पीन में अपने साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वो पैसे वो खर्च कर देता था। अनिल सिंह शायद किसी मैगज़ीन्स के लिए लिखता था,
तो हरि सिंह का मानना है ये बहुत ही अजीब तरीका है पैसे कमाने का। कहानी लिखो, चेक का वेट करो, पैसे आए दोस्तों में खर्च करो। एक शाम को जब अनिल घर पर आए, उसके पास में एक नोट की गठरी थी। उसने इस नोट की गठरी हरि सिंह को दिखाते हुए कहा, देखो कि मैंने आज एक किताब किसी पब्लिशर को बेची है। और उसने वो नोट की गठरी लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब हरि सिंह के मन में आ गया लालच। हरि सिंह ने बहुत दिनों से कोई चोरी नहीं की थी। हाँ, वो 1 आध रुपये से बाज़ार जाकर कंची मारकर कमा लिया करता था, लेकिन उसका जो मेन काम था वो चोरी करना था, और कई महीनों से उसने चोरी नहीं की थी। अब उसके मन में आ गया लालच। अनिल एक बहुत ही अलग किस्म का मालक था। उसने हरि सिंह के ऊपर पूरा तरह से भरोसा कर लिया था। हरि सिंह को उसने दरवाजे के अपने घर की चाबी, कमरे की चाबी भी दे रखी थी। हरि सिंह जब चाहे तब आया जाया जा सकता था। तो हरि सिंह को लगा कि वह आसानी से अपना काम कर सकता है, आसानी से अनिल को चुरा सकता है। लेकिन उसका जो ज़मीर था, उसके जो जहन था, कहीं ना कहीं उसके जहन में कुछ एक चुभन सी हो रही थी। क्योंकि जिस प्रकार से अनिल हरि सिंह पर भरोसा करता था, उसके भरोसे को तोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था हरि सिंह के लिए। तो हरि सिंह कहता है, किसी लालची इंसान को के यहाँ चोरी करना आसान होता है, क्योंकि वह तो लालची होता है, उसके पास पैसा होता है, उसको चुराया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसका कोई बुरा नहीं होता। लेकिन किसी साधारण से व्यक्ति पे जो पैसों की कदर ही नहीं जानता है, उसके यहाँ चोरी करना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिसको उसने चुराया है उसको पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हुई है। तो इसमें मज़ा नहीं आता, ऐसे काम में उसको मज़ा नहीं आता। तो अब हरि सिंह सोचता है, ठीक है, बहुत दिन से मैं अपना काम नहीं किया, अब मुझे अपना काम करना है। अपना काम मतलब चोरी करना है, उसने अपने आप से कहा, वरना वो प्रैक्टिस के बाहर चला जाएगा। किस प्रकार से चोरी करते उसको वो चोरी करना भूल जाएगा। तो अगर वो अपने आप से ये भी कहता है कि अगर उसने ये पैसे चुराया नहीं अनिल से, तो वैसे भी अनिल ये पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देगा, खर्च कर देगा। और वैसे भी अनिल उसके काम के लिए पैसे तो नहीं दे रहा था, उसे काम करवा रहा है और पैसे नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को समझाता है और चोरी करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by a string of my pyjamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away.
When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pyjamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences, I knew, could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today, we'll start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो हरि सिंह ने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे चोरी करना ही है। अनिल सोया हुआ था और कहीं से चंद्रमा की रोशनी बैल्कनी में आ रही थी, बिस्तर के ऊपर फैल रही थी। हरि सिंह उस ज़मीन पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर वो पैसे चुरा लेता है तो वो रात के 10:30 बजे का एक्सप्रेस जो लखनऊ की तरफ जो जा रही है वो गाड़ी पकड़ सकता है। ये बात ठान कर
वो अनिल के बिस्तर की तरफ चला गया और उसने अनिल के ब्लैंकेट के नीचे अपना हाथ डाल दिया। धीरे धीरे करके अनिल तो आराम से सोया हुआ था, चैन की नींद सोया हुआ था, गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर कोई भी शिकंज नहीं थी, कोई भी रेखा नहीं थी। हरि सिंह कहता है कि हरि सिंह के चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी। झुर्रियाँ नहीं, स्कार्स थे, निशान थे। ऐसे कोई बुढ़ापे की झुर्रियाँ नहीं थी, लेकिन घाव के निशान थे। धीरे धीरे उसके हाथ जो है मैट्रेस के अंदर जाने लगे, नोट को टटोलने लगे, और जैसा ही नोट उसके हाथ में आया, अनिल सिंह ने वो नोट निकाला और उतने में ही अनिल ने एक आह भरी और करवट बदला। करवट सीधा हरि सिंह की तरफ बदल दिया। हरि सिंह घबरा गया और धीरे धीरे रेंगते हुए कमरे के वो बाहर चला गया। और जब वो सड़क पर पहुंचा, वो भागने लगा, भागा भागा भागा, दौड़ने लगा। उसके पास अभी नोट जो थे, जो रुपये थे, उसने अपने कमर में खोच लिए थे, नाड़े से बांधकर। उसके पैजामे के नाड़े में उसने नोटों को खपोच लिया था। और फिर कुछ देर दौड़ने के बाद वो चलने लगा और नोट निकालकर वो गिना। पूरे 600 रुपये थे, सारे के सारे 50 रुपये के नोट। उसे लगा इतने पैसे में वो तो आराम से एक चैन की ज़िंदगी, किसी अरब की ज़िंदगी जी सकता है, जिसके पास तेल के कुएं हैं। हफ्ते 2 हफ्ते वो बिल्कुल एक राजा महाराजा अरब की तरह आराम से ज़िंदगी जी सकता है। और वो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पे पहुंचा तो वो टिकट के जो काउंटर है वहाँ पर रुका नहीं। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदी नहीं थी। वो सीधा ट्रेन की तरफ भागने लगा। वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे करके स्टेशन से बाहर निकल ही रही थी, लेकिन ट्रेन ने अभी गति नहीं पकड़ी थी। ट्रेन काफ़ी धीमी चल रही थी। हरि सिंह चाहे तो वो आराम से किसी एक डब्बे में छलांग लगाकर बैठ भी सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा हिचकिचाया, और इस हिचकिचाहट में ट्रेन ने गति पकड़ ली और स्टेशन से बाहर चली गई। हरि सिंह ने ये मौका गंवा दिया ट्रेन पकड़ने का, ट्रेन इस शहर छोड़कर चले जाने का। और जब ट्रेन चले गई तो उसने पाया कि वो अकेले प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं था, अकेले हरि सिंह वहाँ पर खड़ा है। और उसके पास कोई आइडिया भी नहीं था कि अब क्या करूं, यहाँ से कहाँ जाऊं, रात कहाँ बिताऊं। इसके तो कोई दोस्त भी नहीं थे। उसे लगा दोस्त मुसीबत होते हैं, है ना, मदद से ज़्यादा दोस्त तो मुसीबत खड़ा करते हैं। और वह किसी को शक नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए आसपास में जो छोटे छोटे जो होटल थे स्टेशन के पास में, उसमें उसने किसी किराए से कोई कमरा भी नहीं लिया। हरि सिंह सोचा कि मेरा तो केवल एक ही पहचान का इंसान है यहाँ पर, और वो है अनिल, जिसे मैंने अभी अभी चुराया था। तो स्टेशन से वो बाहर निकलता है और उसके कदम धीरे 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 बाज़ार की तरफ चले जाते हैं। बाज़ार के पास जाकर वह सोचने लगा कि उसके ज़िंदगी में उसने अभी तक की जितनी भी ज़िंदगी जी है और उसका जो करियर है चोर का, उसने कई चोरी की है। और चुराते वक्त उसने इंसान के चेहरे पर जो डर था वो देखा है उसने, कि किस प्रकार से जो अमीर इंसान होता है उसके चेहरे पर किस प्रकार का रिएक्शन होता है। अमीर वाला जो है, जब उसका कुछ चीज़ चोरी हो जाता है तो उसका जो बर्ताव है वो बदल जाता है। और जो एक लालची इंसान होता है किस प्रकार से घबराता है उसके यहाँ चोरी हो जाएंगी। जो अमीर इंसान है उसको बड़ा गुस्सा आता है कि वो चुरा लिया गया है, उसका सामान चुरा लिया गया है। और जो गरीब होता है वो मान लेता है, चलो यार जो हुआ सो हुआ। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोगों को हरि सिंह ने चुराया था। पर उसे पता था कि अनिल के चेहरे पर क्या रिएक्शन आएगा। जब अनिल को ये पता लगेगा कि हरि सिंह ने उसे चुरा लिया, तो उसके चेहरे पर केवल हल्की सी एक उदासी छाएंगी। उदासी इसलिए नहीं कि उसके पैसे खो गए, उदासी इसलिए
कि जिस पे उसने भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दे दिया है। तो फिर हरी सिंह अपने आप को एक मैदान में पाता है और वहाँ पर एक बेंच होता है, उस बेंच पर जाके वो बैठ जाता है। रात काफ़ी ठंडी थी और धीरे धीरे हल्की हल्की सी बारिश गिरने लगी थी। नवंबर का मौसम था। तो हरी सिंह को ठंडी भी लग रही है और बारिश भी होने लगी और बारिश ने जोर भी पकड़ लिया। हरी सिंह के शर्ट और पैजामा उसके शरीर से चिपकने लगे और इसे काफ़ी ठंडी लगने लगी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा और ठंडे पानी के बूंदे हरी सिंह के चेहरे पर लगने लगे। तो हरी सिंह वापस से बाज़ार जाता है और वहाँ पर जो एक क्लॉक टावर होता है, एक घड़ी का जो टावर होता है, बाज़ार में एक बड़ी सी घड़ी लगी थी, वहाँ पर टावर था और वहाँ पे कुछ शेड था, तो वहाँ पर जाके वो बैठ जाता है। घड़ी के कांटे रात के 12 बजे दिखा रहे थे। हरी सिंह ने फिर से नोट को हाथ लगाया। नोट गिल्ले हो चुके थे। उसने बोला, ये पैसे अनिल के हैं और सुबह शायद इसमें से अनिल 2 या 3 रुपए हरी सिंह को दे दिया होता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अभी तो पूरे के पूरे पैसे उसके पास है। अभी उसे खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाना नहीं पकाएगा, बाज़ार नहीं जाएगा, लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। अरे वो तो ये बात भूल ही गया था, चोरी के एक्साइटमेंट में वो तो ये बात भूल ही गया था कि उसे पढ़ना और लिखना है, फुल सेंटेंस पढ़ना है। उसे पता है कि अगर उसने सेंटेंसेस पढ़ना सीख लिया कि उसे एक दिन वो इस चंद 100 रुपये नोट से 500-600 रुपये से कई गुना ज़्यादा वो कमा सकता है। चोरी करना बहुत ही मामूली सी बात है और पकड़ा जाना भी मामूली सी बात है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक आदरणीय इंसान बनना, ये कुछ और ही बात है। उसे लगा मैंने अनिल के पास वापस जाना चाहिए। उसने कहा, चलो केवल अगर पढ़ने लिखने के लिए सही मैं अनिल के पास जाता हूँ, भले वो मुझे पैसे दे ना दे, मैं बस उसके पास जाकर पढ़ लिख लिया और बड़ा आदमी बन गया तो मैंने ज़िंदगी में कुछ कमा लिया। जल्दी जल्दी से वो अपने कदम वापस अनिल के कमरे की तरफ करता है। थोड़ा सा नर्वस तो ज़रूर था, क्योंकि चुराना बड़ा आसान होता है, लेकिन बगैर जताए पैसे वापस रखना ये बड़ा कठिन पड़ जाता। तो धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे खड़े होकर वह देखा कि अनिल अभी भी सोया हुआ था। वापस से धीरे से वो अपने बिस्तर में गया, नोट निकाले और अनिल के तकिए के नीचे धीरे से उसने उस नोट को वापस डाल दिया। फिर अगली सुबह काफ़ी देर से उठा हरी सिंह। तब तक का अनिल तो उठ चुका था। अनिल ने बढ़िया चाय वाय बना के रखी थी और जब हरी सिंह उठा, अनिल ने अपने जेब से एक 50 रुपये का नोट निकालते हुए हरी सिंह को दे दिया। हरी सिंह का दिल बैठ गया। हरी सिंह को लगा, अरे मेरी चोरी पकड़ा गई। अनिल ने कहा, देखो कल मैंने कुछ पैसे बनाए थे, ये पैसे तुम रख लो और आज के बाद मैं हर महीने आपके लिए पेमेंट देता रहूँगा। आप जो काम करते हैं मेरे लिए, उसके बदले में मैं आपको पेमेंट दिया करूँगा। हरी सिंह का स्पिरिट जो है, जो जोश है, वापस से अपनी जगह पर आ गया। लेकिन जब हरी सिंह ने उस नोट को अपने हाथ में लिया तो वो नोट रात की बारिश की वजह से अभी भी गिले ही थे। हरी सिंह ने कहा, आज मैं आपको एक पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। अनिल जानता था कि हरी सिंह ने चोरी की है, लेकिन ना ही उसके चेहरे ने, ना ही उसके होठों ने, ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ कहा। इस बार हरी सिंह मुस्कुराया। एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट दी उसने अनिल को, और इस बार ये मुस्कुराहट जो थी वो दिल से आई वाली मुस्कुराहट थी, कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।